Very good morning, dear students. Today I am going to explain you lesson 5 of your grammar section, and in which I will explain you about noun, the gender. Today we will study about the genders like masculine, feminine, and common gender. So here are some examples that I will give you for genders and also I will tell you that how you can change the genders from feminine to masculine or masculine to feminine, that we will study. Gender is the quality of a noun or a pronoun that classifies it as masculine, feminine, and common or neutral gender. Dear students, in which gender includes nouns and nouns or pronoun. If you are writing he, then it would be masculine gender. If you are writing she, it would be feminine gender. Same as if you are writing a word like queen. Queen is a feminine gender and king is the masculine gender. मीन्स हम यहाँ ये पढ़ रहे हैं कि मस्कुलाइन और फेमिनाइन क्या होते हैं। जो ऐसे वर्ड्स जो फीमेल के अंतर्गत आते हैं या जिनमें फीमेल इंक्लूड्स होती है वो फेमिनाइन जेंडर होते हैं, और जिनमें मेल जेंडर होता है वो मस्कुलाइन जेंडर होते हैं। वर्ड्स लाइक चाइल्ड, फ्रेंड, कजिन, पर्सन, प्यूपिल, पेरेंट, टीचर आर सेड टू बी नाउन्स इन द कॉमन जेंडर। ये सारे कॉमन जेंडर होते हैं जो दोनों में आते हैं। दैट मीन्स फ्रेंड दोनों होंगे, जैसे फ्रेंड मस्कुलाइन भी हो सकती है, फेमिनाइन भी हो सकती है, मीन्स मेल फीमेल फ्रेंड्स हो सकते हैं। अगर हम डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर जो है वो मस्कुलाइन भी हो सकता है और फेमिनाइन भी हो सकता है। इस तरह से पुलिस की बात करें तो पुलिस में भी मेल और फीमेल हो सकते हैं। दैट्स वाई इट वुड बी नॉन एज कॉमन जेंडर। तो ऐसे जेंडर्स जो कि कॉमन में आते हैं वो कॉमन जेंडर कहलाते हैं। लाइक प्लेयर गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है, तो हम उसे कहेंगे कॉमन जेंडर। डियर स्टूडेंट्स, देयर आर मेनी वर्ड्स इन विच वी कैन राइट एज अ कॉमन जेंडर। एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ दैट स्टूडेंट, pupil, parent, they both are accounts in known as a common gender. Formation of feminine gender. Now we are studying about the formation of feminine gender. Feminine gender can be formed in different ways by adding ESS to the masculine form. अगर कोई masculine form हमारे पास है तो हम उसमें ESS अप्लाई करके या ऐड करके उसे कन्वर्ट कर सकते हैं फेमिनाइन जेंडर में। एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं आपको। लॉयन मस्कुलाइन जेंडर होता है, तो लॉयन में अगर आप ESS अप्लाई करते हैं तो होगा लॉयनेस फेमिनाइन जेंडर होता है। सेम हियर इन टाइगर इज मस्कुलाइन जेंडर एंड टाइग्रेस इज नॉन एज फेमिनाइन जेंडर। सेम हियर गॉड इज अ मस्कुलाइन जेंडर एंड गॉडेस इज नॉन एज फेमिनाइन gender. So we have learned in that words that if you are applying ESS in a word in masculine gender, then it would be convert in feminine gender. In the following examples, the addition of ESS causes an internal change in the spelling. इसमें ये जो स्पेलिंग होगी जो आप मस्कुलाइन से फेमिनाइन में चेंज करोगे, तो ऐसा नहीं है कि आप सभी में एक ही रूल अप्लाई करेंगे। There are many rules and many different kinds of rules are there that you have to know. So the first rule I have told you that you can apply ESS to change the form of from masculine to feminine. Some more example I am giving you here: actor, actress, duke, duchess, emperor, empress, governor, governess, and host, hostess, hunter, huntress, and waiter, waitress. These all are the words in which we have applied ESS. Dear students, there are many genders which are converted from masculine to feminine, but they are totally changed. Like brother, opposite of brother is sister. ब्रदर जो है वो मस्कुलाइन जेंडर है और सिस्टर जो है वो फेमिनाइन जेंडर है, बट यू कैन सी दैट ब्रदर और सिस्टर दोनों वर्ड जो हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। सेम इज़ इन फादर, मदर,
डॉग, बीच, हॉर्स, मेयर, फॉक्स, विक्सन, हस्बैंड, वाइफ, मैन का वुमन होगा, एंड अंकल वुड बी चेंज इन आंट, सेम एज लॉर्ड वुड चेंज इन लेडी, एंड monk would change in none. Same here, the many words are here. You can see in your book that words and you can read. By the formation of compound words, that is by ed, another word to be feminine noun. That means if you want to change in feminine nouns to a masculine noun, so there are some words in which you have to make it compound words. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कंपाउंड्स में होते हैं और उन कंपाउंड वर्ड्स से मिलकर मीन्स उनका जो कंपाउंड वर्ड्स होता है वही चेंज हो जाता है किसमें, फेमिनाइन जेंडर में. लाइक मस्कुलाइन में फिशरमैन, फिशरमैन का फेमिनाइन क्या होगा, फिशर वुमन. सेम ईयर ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ. उसी प्रकार मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, स्टेप फादर, स्टेप मदर, स्टेप सन, स्टेप डॉटर, मिल्क मैन, मिल्क मैड, जेंटलमैन, जेंटल वुमेन, एंड ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, मिल्क मैन, मिल्क मैड. There are many words that I have told you that you can change it as a compound word. जैसे compound words में हमने masculine gender लिखा है वैसे आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं फेमिनाइन जेंडर में. Some words have slightly different from than those mentioned above for their feminine gender. जैसे कि अभी आपको ऊपर बताया मैंने कि बहुत सारे जेंडर्स जो हमने पढ़े हैं कि जो क्या है, डिफरेंट है. जैसे कि अभी हमने कंपाउंड में पढ़ा है, एक तो स्टार्टिंग में हमने जो पढ़ा है उसमें ये बताया कि ESS अप्लाई करके हम मस्कुलिन जेंडर को फेमिनाइन जेंडर में कन्वर्ट कर सकते हैं. उसी प्रकार सेकंड जो मैंने आपको बताया रूल, उसमें ये बताया कि टोटली चेंज भी हो सकता है मस्कुलिन और फेमिनाइन जेंडर. एंड थर्ड वन इन विच वी हैव स्टडीड अबाउट द कंपाउंड वर्ड्स, दैट इफ द मस्कुलिन जेंडर इज इन compound words then it would be changed in feminine gender, then you have to use the compound words again. उसमें आपको कंपाउंड वर्ड से यूज़ करना होगा. जैसे अगर फिशरमैन था तो मैन की प्लेस पे हमें वुमेन लिखना होगा, लैंड लॉर्ड की प्लेस पे लैंड लेडी लिखना होगा. सेम द वर्ड्स, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जेंडर. लाइक इसमें स्लाइट डिफरेंस होता है, मीन्स थोड़ा सा डिफरेंस होता है. जैसे हीरो, हीरोइन, मास्टर, मिस्ट्रेस, लेट का लॉस होगा, विडोवर का विडो होगा. सो दीज आर द वर्ड्स इन विच वी कैन लर्न दैट हाउ वी कैन कन्वर्ट द मस्कुलाइन टू फेमिनाइन जेंडर. Dear students, we have already studied about the genders masculine and feminine gender. But some other gender we have to study. These are common and neutral gender, जिन्हें हम क्या कहेंगे, common और neutral gender कहेंगे. Common, which I have explained to just now, that in common gender we can say about pupil, student, doctor or nurse, or sorry, nurse not, but friend we can also apply. Means friend हमारा मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. नेबर जो होते हैं वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं. डॉक्टर मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं. उसी प्रकार जो ऐसे वर्ड्स जो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, दीज आर नॉन एज कॉमन जेंडर. न्यूट्रल जेंडर refers to non-living things that are neither male nor female. न्यूट्रल जेंडर वो जेंडर्स होते हैं जिनमें नॉन लिविंग थिंग्स इंक्लूड होती है, जो कि ना तो मेल होती है ना फीमेल होती है. लाइक बुक, चेयर, डेस्क, टेबल, फैन, मोबाइल फ़ोन इन विच यू आर लुकिंग, द बुक, पेन, पेंसिल, everything which are non-living, this includes in neutral gender. So these are some points that I am going to tell you. Though collective nouns such as army, people, nation, flock, class and group are used to signify the collection of group or of living things, they are classified as neutral gender.
ये सारे वर्ड्स न्यूट्रल जेंडर में आते हैं, जिन्हें हम कलेक्टिव नाउन्स की तौर पर कहते हैं, कलेक्टिव नाउन्स भी कहते हैं। Gender is the quality of noun pronoun, as I told you, that classifies it as a masculine, feminine, common gender and neutral gender. Means gender जो मैंने आपको बताया है 3 तरह के होते हैं, but almost we are studying about the 4 types of gender. The one last is the neutral gender, in which non-living things include. Common gender refers to either male or female. Common gender में male और female दोनों होते हैं। और न्यूट्रल जेंडर रिफर्स टू नॉन लिविंग थिंग्स। न्यूट्रल जेंडर में क्या आती है? नॉन लिविंग थिंग्स आती है।